व्यापार एवं पेशे से लाभ अथवा अर्जन के इस शीर्षक के तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। We will learn the incomes chargeable under this head as per section 28। हम इस व्याख्यान में इस शीर्षक के तहत धारा 28 के अनुसार प्रभार्य आयों के बारे में बात करेंगे। The various items of income chargeable to tax as income under the head profits and gains of business or profession are as under। व्यवसाय या पेशे के लाभ और अर्जन के तहत आय के रूप में कर के लिए आय के विभिन्न मदों को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। नंबर 1, income from business or profession, income arising to any person by way of profits and gains from the business or profession carried on by him at any time during the previous year। व्यवसाय या पेशे से आय पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी करदाता द्वारा किए गए व्यवसाय पेशे से मुनाफे और लाभ के रूप में किसी भी व्यक्ति से उत्पन्न आय। नंबर 2, any compensation or other payments due to or received by any person by whatever name called managing the whole or substantially the whole of the affairs of an Indian company or the affairs in India of any other company at or in connection with the termination of his management or office or for modification of any of the terms and conditions relating thereto। कोई भी मुआवजे या अन्य भुगतान देय या प्राप्य इनके द्वारा ए कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी नाम से जाना जाए पूरे या पर्याप्त रूप से प्रतिबंधित करता है, पूरी तरह ए प्रबंधित करता है, प्रतिबंधित नहीं, एक भारतीय कंपनी के मामले या किसी भी अन्य कंपनी के भारत में उसके प्रबंध या कार्यालय की समाप्ति या उसके संबंध में किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन के संबंध में या उसके किसी भी प्रकार के संबंध में। बी, एनी पर्सन बाय whatever name called holding an agency in India for any part of the activities relating to the business of any other person at or in connection with the termination of the agency or the modification of any of the terms and conditions relating thereto। कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी नाम से जाना जाए एजेंसी की समाप्ति के संबंध में या किसी भी नियम और शर्तों के संशोधन के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के किसी भी भाग के लिए भारत में एक एजेंसी रखता है, उससे संबंधित। सी, एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विथ द वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और इन एनी कॉरपोरेशन owned or controlled by the government under any law for the time being in force of the management of any property or business। कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति या व्यवसाय के प्रबंधन के किसी भी कानून के तहत सरकार या किसी भी कानून के तहत स्वामित्व या सरकार में स्वामित्व या किसी भी निगम के संबंध में। डी, any person by whatever name called at or in connection with the termination or modification of the terms and conditions of any contract relating to his business। कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम से उसे जाना जाए जिसका अपने व्यवसाय से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट का अंत या उसके नियम तथा शर्तों में परिवर्तन हुआ हो। थर्ड, income from specific service performed for its members by a trade, professional or business। Income derived by any trade,
professional or similar associations from specific services rendered by them to their members. It may be noted that this forms an exception to the general principle governing the assessment of income of mutual associations such as chambers of commerce, stockbrokers association, etc. As a result, a trade, professional, or similar association performing specific services for its members is to be deemed as carrying on business in respect of these services, and on that assumption the income arising therefrom is to be subjected to tax. For this purpose, it is not necessary that the income received by the association should definitely or directly be related to these services. किसी भी व्यापार, पेशे या उद्यम द्वारा अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवाओं से प्राप्त आय। किसी भी व्यापार, पेशेवर या उनके द्वारा अपने सदस्यों द्वारा दी गई विशेष सेवाओं से संबंधित समान कंपनियों द्वारा प्राप्त आय। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह आपसी संगठनों जैसे कॉमर्स के चैम्बर, शेयर ब्रोकर एसोसिएशन इत्यादि की आय के आकलन को संचालित करने वाले सामान्य सिद्धांत को एक अपवाद बनाती है। अतः इन सेवाओं के संबंध में व्यापार, पेशेवर या इसी तरह के सहयोग से अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवाओं का प्रदर्शन करना माना जाता है और इस धारणा पर ये उत्पन्न होने वाली आय कर के अधीन होती है। इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संघ द्वारा प्राप्त आय निश्चित रूप से या इन सेवाओं से सीधे संबंधित होनी चाहिए। Number 4. Incentives received or receivable by SSE carrying on export business. First, profit on sale of import entitlements. Profits on sale of a license granted under the Imports Control Order 1955, now Foreign Trade Exemption from Application of Rules in Certain Cases Order 1993, made under the Imports and Exports Control Act 1947, now Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. Number 2. Cash assistance against export under any scheme of Government of India. Cash assistance by whatever name called, received or receivable by any person against exports under the schemes of the Government of India. Customs duty or excise repaid or repayable as drawback. The customs duty or excise duty drawback repaid or repayable to any person against export under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971, now Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1995. Number 4. Profits on transfer of duty entitlement passbook scheme or duty free replenishment certificate. Any profit on the transfer of the duty entitlement passbook scheme. The pre export DEPB scheme was abolished with effect from 1st April 2000. After several extensions through the years, the post export scheme was phased out on 30th September 2011, and thereafter DEPB items were incorporated into duty drawback schedule with effect from 1st October 2011, or duty free replenishment certificate being duty remission scheme under the export and import policy formulated and announced under section 5 of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992. निर्यात व्यवसाय करने वाली निर्धारिती द्वारा प्राप्त या प्राप्य प्रोत्साहन। ए. आयात एंटाइटलमेंट की बिक्री पर लाभ। आयात और निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 अब
विदेश व्यापार विशिष्ट स्थितियों में नियम लागू करने में छूट आदेश 1993 के तहत किए गए आयात नियंत्रण आदेश 1955 अब विदेश व्यापार उन्नति तथा नियंत्रण कानून 1992 के तहत दिए गए लाइसेंस की बिक्री पर लाभ। बी, भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत निर्यात के खिलाफ नगद सहायता। भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नकदी सहायता जिस नाम से भी जाना जाता है, प्राप्त या प्राप्य। सी, कस्टम ड्यूटी या उत्पाद शुल्क में वापसी या चुकौती के रूप में चुकाया जा सकता है। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1971 अब सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 1995 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी शुल्क का भुगतान या किसी भी व्यक्ति को चुकाई जाने वाली कोई सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क वापसी। डी, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट के हस्तांतरण पर लाभ। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम पूर्व निर्यात डीईपीबी प्रणाली को 1 अप्रैल 2000 में समाप्त कर दिया गया है। कई वर्षों में विस्तारण बाद 30 सितंबर 2011 में निर्यात बाद प्रणाली बनाई गई तथा उसके बाद डीईपीबी वस्तुएं 1 अक्टूबर 2011 से शुल्क वापसी अनुसूची में सम्मिलित की गई है। या ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट के हस्तांतरण पर कोई लाभ। ड्यूटी डिमशन स्कीम निर्यात और आयात नीति के तहत तैयार की गई और घोषणा की गई विदेश व्यापार विकास और नियमन अधिनियम 1992 की धारा 5 के तहत। नंबर 5, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजाइट। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजाइट whether convertible into money or not arising from business or the exercise of any profession। किसी भी लाभ या लाभ का मूल्य, किसी भी लाभ या लाभ के मूल्य चाहे पैसे में परिवर्तनीय या व्यापार से उत्पन्न होने वाला किसी भी पेशे का अभ्यास। नंबर 6, सम ड्यू और रिसीव्ड बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, commission or remuneration by whatever name called due to or received by a partner of a firm from such firm will be deemed to be income from business. However, where any interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called or any part thereof was not been allowed to be deducted under section 40B in the computation of the income of the firm, the income to be taxed shall be adjusted to that extent of the amount disallowed। किसी भी फर्म के एक भागीदार से देय या प्राप्त रकम, कोई भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक किसी भी नाम से बुलाया जाए, ऐसी फर्म से फर्म के पार्टनर द्वारा देय या उसके द्वारा प्राप्त व्यवसाय से आय माना जाएगा। हालांकि किसी भी ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक को धारा 40B के तहत कटौती करने की अनुमति नहीं दी गई है। फर्म की आय की गणना में आय पर कर लगाना को अस्वीकृत राशि की सीमा तक समायोजित किया जाएगा। Now let us take one example. Suppose a firm pays interest to a partner at 20% simple interest per annum. The allowance rate of interest is 12% per annum. Hence, the excess 8% paid will be disallowed in the hands of the firm. Since the excess interest was suffered tax in the hands of the firm, the same will not be taxed in the hands of the partner. मान लीजिए एक फर्म साझेदार को 20% सरल ब्याज प्रति वर्ष की दर से चुकाती है, जबकि आयकर अधिनियम में स्वीकृत दर 12% प्रति वर्ष है। अतः अतिरिक्त 8% का भुगतान फर्म के हाथों में नहीं होगा।
चूंकि फर्म के हाथों में अधिक ब्याज का कर भुगतान पड़ा है, इसलिए साझेदार के हाथों में ऐसा नहीं किया जाएगा, अर्थात एक ही आय पर दो व्यक्तियों द्वारा समानांतर कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यय फर्म को अस्वीकृत कर दिए गए हैं, उस राशि पर साझेदार को कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 7, any sum, whether received or receivable in cash or kind under an agreement. Number 1, for not carrying out any activity in relation to any business or profession, और कोई भी राशि प्राप्त या प्राप्त करने योग्य नकदी या वस्तु के रूप में एक समझौते के तहत। ए, किसी भी व्यवसाय या पेशे के संबंध में कोई गतिविधि नहीं करने के लिए, या Note: however, the following sums received or receivable would not be chargeable to tax under the head Profits and Gains from Business or Profession. A, any sum, whether received or receivable in cash or kind on account of transfer of the right to manufacture, produce, or process any article or thing, or right to carry on any business or profession which is chargeable under the head Capital Gains. B, any sum received as compensation from the multilateral fund of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer under the United Nations Environment Program in accordance with the terms of agreement entered into with the Government of India. नोट: हालांकि निम्नलिखित रकम प्राप्त या प्राप्ति योग्य व्यवसाय या पेशे से मुनाफा और लाभ के तहत कर के लिए योग्य नहीं होगी। ए, किसी भी व्यवसाय या पेशे को जारी रखने के लिए किसी भी लेख या वस्तु का निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया का अधिकार के हस्तांतरण के मामले में नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्त करने योग्य जो पूंजीगत लाभ शीर्षक के तहत प्रभार्य है। बी, भारत सरकार के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ओजोन परत को अवशोषित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय निधि से मुआवजे के रूप में प्राप्त कोई भी राशि। सेकेंड, फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और any other business or commercial right of similar nature or information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision for services. सामानों के निर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं के प्रावधान में सहायता के लिए किसी भी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस या किसी अन्य व्यवसाय या समान प्रकृति या सूचना या तकनीक का वाणिज्य अधिकार साझा नहीं करने के लिए। कुछ शब्दों का हम विशिष्ट अर्थ यहाँ पर समझ लेते हैं। टर्म एंड मीनिंग। एग्रीमेंट includes any arrangement or understanding or action in concern A, whether or not such arrangement, undertaking, understanding or action is normal or in writing, or whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable by legal proceedings. समझौता व्यवस्था या समझ या सहमति में कार्यवाही शामिल है। ए, क्या ऐसी व्यवस्था, समझ या क्रिया औपचारिक या लिखित रूप में है अथवा नहीं। बी, कानूनी कार्यवाही से इस तरह की व्यवस्था, समझ या क्रिया का लागू होना चाहे हो या नहीं। सर्विस सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन which is made available to potential users and includes the provisions of services in connection with business of any industrial or commercial nature such as accounting,
banking, communication, conveyance of news or information, advertising, entertainment, amusement, education, financing, insurance, chit funds, real estate, construction, transport, storage, processing, supply of electrical or other energy, boarding and lodging. सेवा किसी भी विवरण की सेवा जो संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है और इसमें किसी भी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति जैसे व्यापारिक, लेखा, बैंकिंग, संचार, समाचार या जानकारी, विज्ञापन, मनोरंजन, शिक्षा, वित्त पोषण के संबंध में सेवाओं के प्रावधान शामिल है। बीमा, चिट फंड, रियल एस्टेट, निर्माण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, बिजली या अन्य ऊर्जा की आपूर्ति, बोर्डिंग और लॉजिंग। नंबर 8, any sum received under a key man insurance policy. Any sum received under a key man insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, will be taxable as income from business. प्रमुख बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि, ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित प्रमुख बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। नंबर 9, fair market value of inventory on its conversion as capital assets. Fair market value of inventory on the date of the conversion or treatment as capital asset determined in the prescribed manner would be chargeable to tax as business income. माल का उचित बाजार मूल्य उसके पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तन पर, माल के पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तन या प्रबंध की तिथि पर उचित बाजार मूल्य निर्धारित तरीके से निकाला जाएगा जो व्यापारिक आय के रूप में कर योग्य होगा। सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 35 AD. Any sum received or receivable in cash or kind on account of any capital asset in respect of which whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as a deduction under section 35 AD being demolished, destroyed, discarded or transferred. धारा 35 AD के तहत निर्दिष्ट पूंजी संपत्ति के हिसाब से प्राप्त राशि किसी भी पूंजीगत संपत्ति के संबंध में नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त या प्राप्ति योग्य किसी भी राशि खंड 35 AD के तहत कटौती की अनुमति जिस पर दी गई है, ध्वस्त, नष्ट, खारिज या स्थानांतरित करने पर। धन्यवाद।